to show you here what is it. See, here I'm typing watch. See, website. Okay. Now website is developed in HTML. Okay. And HTML is having what? It is having tags. Okay. It is having attributes along with the tags, and it is having content. Okay, content means जो आप उसमें देना चाहते हैं. So you see, it's this one. Website is developed in HTML. We know it. Now HTML is containing tags, attributes, and content. Okay. With the help of tags, attribute, and content, what actually we design? We design three things. We design it is having that style. Okay, means in what style you want to display that. Or you can say in simple language, I can say that it's decoration part. Okay, decoration of the page means color, background, this and that. Now each and every object is also having different colors and designing. Okay, so this decoration part is there, and along with that decoration we have the content, and this content is text. It's simply we can say it's text. It's okay. So content means the text, and along with that content we have the decoration. Okay, so image is there. Content means it's a text and image, and video and audio, video, whatever. So all such things are there. So here you see it is having two things, mainly content, that is in the form of text, image, audio, video, everything, and its decoration and its alignment. Okay, so when we are talking about the decoration, we think about the tags. Okay, this tags decoration is having that tags, object are there, and along with that objects we have the attributes. Okay, so tags and the attributes both together will give the decoration of the page. Okay, now you see when we have in this HTML page, we have the decoration and content together. So what will happen? It's a web page, means the HTML page will be larger. It's larger. Now, if we divide it into two parts, we divide it decoration separate and content separate. Okay, so when we see, now we are making it HTML page. Okay, now HTML page is having two things. Okay, HTML page is having two things, but in different ways. Okay, now first HTML page is having this thing. Now first we have decoration, okay, and HTML. Okay, now this is decoration. Now we have one more thing, that is, you can say it's content. Okay, now this decoration part is separate and content is separate. Got it? Now you think, when we talk about decoration, it will be in the file, separate file, like having the extension .css. Okay, cascading style sheet. And when we talk about content, it's having the file HTML.
Okay, so this you can say this HTML page is divided into two files. One file is decoration file having the extension .css, okay, and another is HTML file having that normal HTML extension. So your website is having proper structure कि आपका डिजाइनिंग अलग हो गया और जो कंटेंट है वो अलग हो गया। तो यही डिजाइनिंग के लिए मैं आपको लास्ट टाइम समझाया था कि हम जैसे डिजाइनिंग में जो पेंटिंग वेंटिंग डेकोरेशन या डिस्टेम्पर या कुछ भी वॉल्स पे करवाते हैं, तो वो हमने एक अलग से सेट रूल्स बना दिए कि ऐसा क्लासरूम में ऐसा डिस्टेम्पर होना है, कॉरिडोर्स में ऐसा डिस्टेम्पर होना है, लैब्स में ऐसा डिस्टेम्पर होना है। तो वो रूल्स हमने यहाँ बना दिए एंड दैट शीट वी हैव गिवन टू द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल। ओके, एंड आफ्टर दैट जो हमारा ये है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में कंटेंट हमारा स्कूल है। ओके, सो वेन एवर बोथ विल बी लिंक्ड, अब इन दोनों को लिंक करना है, इन दोनों को क्या करना है, लिंक। सो वेन एवर वी लिंक बोथ ऑफ दीज फाइल्स, okay, when we link both of these files means decoration and your content, both will be linked, your complete HTML website will be displayed. I hope you have understood. Now here we will discuss one by one how will you do it. Decoration, that is CSS style sheet, how will you develop? Okay, so the not only the file, you can do it internally also within the HTML file also. So one by one we will discuss it, all those points. Hope you have understood the purpose of CSS. Okay, it's a CSS is a cascading style sheet. Okay, and it is having all the uh, styles, all the rules which are defining the styles in your website. Okay, so selector, curly braces, then property name, colon value, semicolon, then property name, colon value, semicolon. Okay, so this is the general syntax to define the rules of designing. Okay, style को design define करने का एक हमने एक syntax बना दिया, एक बताया कि कैसे लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, सेलेक्टर, सेलेक्टर का मतलब टैग। ओके, और उस टैग की जो भी डिजाइनिंग आपको करनी है वो करली ब्रैकेट में देना है। ओके, नाउ एग्जांपल के लिए जैसे H3, H3 इज हेडिंग 3, ये सेलेक्टर हो गया, मींस इसको आपने सेलेक्ट किया, दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच यू वांट टू डिजाइन। देन यू पुट हियर फॉन्ट, ये डॉट की जगह हाइफन होना चाहिए, इधर थोड़ा सा गलत है। ओके, सो फॉन्ट हाइफन फैमिली कोलन, और ये हमने एरियल, मींस इस H3 हेडिंग जहां भी होगा उसका एरियल स्टाइल होगा। ओके, कलर उसका रेड होगा, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब अलग अलग जो है, जैसे फॉन्ट फैमिली ऐसा और कलर ये, सो इफ यू वांट टू सेपरेट देम यू पुट इन बिटवीन सेमीकोलन। ओके, सो ये ध्यान रखना है और ये करली ब्रैकेट लगाना है। सो इन स्टाइल रूल्स डिक्लेरेशंस वे आर एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। नाउ अगेन वी go to this. Once this rule is defined, H3 elements shall be of Arial font and color is of red. Okay, but before we go further, let's have a look at the rules of defining these style rules. The selector is usually the name of a tag, जो अभी अभी मैंने बताया था, tag name. Brackets are curly, curly होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं होगा, राउंड ब्रैकेट नहीं होगा, curly ब्रैकेट याद रहेगा। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपका स्टाइल शीट में जो डिक्लेरेशन होता है वो किस ब्रैकेट में करते हैं, तो ये करली ब्रैकेट में। आफ्टर ईच प्रॉपर्टी नेम देयर इज अ कोलन, प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए, जैसे ये फॉन्ट फैमिली और कलर को सेपरेट करना है, ये प्रॉपर्टी है। So if you want to separate them, you put semicolon in between. Okay, now in this manner you have property name colon value, उसका कॉम्बिनेशन, और उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये आपको मैंने समझा दिया कि कैसे करना है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम स्टाइल, मींस H2, H4, H6, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको एक ही स्टाइल में चाहिए, तो आप सारे सेलेक्टर्स या टैग्स को कॉमा लगा के लिख सकते हैं। ओके, सो वी हैव रिटन H2, H4, H6 all together separated by comma, and then using curly bracket we write here color gray, okay, semicolon, font hyphen family, और ये इसका दे दिया फॉन्ट का ये वरदान। ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव गिवन। नाउ नेक्स्ट थिंग,
next thing, here you see, again we have to notice here that two parts of a CSS rule. ये rule है, that is selector पहले, फिर curly bracket, फिर property value. In this manner we will define it. जैसे example है, जैसे body is the tag, इसको हमने body लिखा, then curly bracket लगाया, font family colon Roland, okay, font hyphen family colon Roland, Arial, so ये आपने दे दिया. देन कलर ब्लैक, कलर कोलन ब्लैक, ये याद रखिएगा, कोलन लगेगा बीच में, फिर सेमी कोलन. बैकग्राउंड हाइफन कलर व्हाइट, ये इस तरह से आपने दिया. ठीक है, तो ये ऐसे डिक्लेरेशन किया जाता है, राइट. ये हमने डिक्लेयर किया. अब हम बात करते हैं कि हाउ विल यू use these style sheets in your web page. How will you use these style sheets in your web page? There are three ways. Okay, there are three ways to adding style sheets to a web page. हम तीन तरह से style sheets को बना सकते हैं वेब पेज में. पहला बोलेंगे इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, और थर्ड है एक्सटर्नल. सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि ये आपकी CSS फाइल अलग बनती है इसमें. ठीक है, सो बट स्टिल वी कैन लर्न दैट इनलाइन भी है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है. तीन तरह से आप स्टाइल्स में बना सकते हैं, रूल्स को वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं. मींस इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, इनका जो ऑर्डर है, I mean to say that if you have in a web page all the three ways to add CSS rules, इनलाइन भी लिखा, इंटरनल भी लिखा, एक्सटर्नल भी लिखा, तीनों तरह से अगर आपने यूज किया, तो सबसे पहले इनका ऑर्डर जो है वो ये है कि wherever the inline होगा वो एग्जीक्यूट पहले होगा, इंटरनल बाद में होगा, एक्सटर्नल सबसे लास्ट में होगा. तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है ये तीनों. ओके, नाउ यू सी, next is how will you do inline styles. But one thing you understand, that inline style is not very popular and it's not useful one. Okay, but still since it is there, so we can learn it, because here it is to be included with each and every tag. It doesn't reduce the size of that web page. Okay, आपका HTML का कोडिंग इससे रिड्यूस नहीं हो रहा. तो ये बेसिकली इनलाइन स्टाइल इतना फ्रूटफुल नहीं है, बट स्टिल वी कैन डू इट. ओके, सी सपोज वी हैव टू राइट हियर H3 का लिखना है. सो हियर यू राइट H3 ओनली in place of you write here text equal to Arial, or means text equal to color or face equal to Arial. जो हम टैग्स यहाँ देते थे अलग अलग, आपको यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू लिखना है. सो स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली कोलन, ये यहाँ पर इक्वल टू एरियल. ओके, सो हियर यू सी along with the tag ये लिखना है स्टाइल, but it is to be written with each and every tag, so obviously it's not very useful. Again you see H3 के लिए हमने ऐसे लिखा, ये H3 टैग के लिए. अगर H1 के लिए तो वो अलग लिखना पड़ेगा, H1. okay, means wherever you do it. Suppose here table, you are designing one table, so you write here style equal to font family colon Arial semicolon font size colon small. ओके, तो ये आपने स्टाइल में दिया. अब आप देख रहे होंगे यहाँ इक्वल टू लगा के ये सब दिया हुआ है. ठीक है, ये इनलाइन स्टाइल है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है ये किसके साथ दिया है आपने, टेबल के साथ, टैग के साथ ही देना है. सो यू सी व्हेन इनलाइन स्टाइल्स आर एडेड टू अ टैग, they occur only for the individual tags. You remember it, it is to be written with the individual tags where they are specified and not for all similar tags on the page. सभी similar tags के लिए एक साथ नहीं दे सकते जो आपका inline tag में, it is to be included with each individual tag. Okay, so we will not discuss much about it because it's not much useful. आपको हर टैग के साथ अगर ये देना ही है तो क्यों हम ये स्टाइल को बार बार यूज करें, हमको डायरेक्ट ऐसे लिखना है. सो इट इज विल नॉट मेक significant difference in writing the HTML code. Yes, next thing, now let's here you see inline style में ये सब दिया और आपका ये डिस्प्ले हुआ इस तरह से टेबल्स को. ठीक है,
नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, कम टू इंटरनल स्टाइल। ये मैं लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में भी समझाया था आपको, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इंटरनल स्टाइल जो है ये थोड़ा सा यूजफुल है, लेकिन इसमें भी HTML पेज में ही, इसमें दो फाइल्स नहीं बनानी। वी नीड नॉट टू मेक टू फाइल्स, CSS फाइल सेपरेट नहीं बनाना है। यू विल हैव टू राइट द सेम इन द सेम HTML पेज, HTML कोड में ही लिखना है इसको। नाउ इंटरनल स्टाइल में क्या लिखते हैं, इट्स एम्बेडेड वन। It's embedded one means in the HTML code only you have to write it, but it is having a simple way. You see, you will have to write under the heading tag style or type equal to text colon CSS, ये लिखना है। और उसके बाद में इसके बीच में CSS rules लिखने हैं, ठीक है। और after that you need not to write all such CSS means designing part. You need not to write the डिजाइनिंग पार्ट इन द एट्रीब्यूट विद ईच एंड इंडिविजुअल टैग, मींस हर एक टैग के साथ डिजाइनिंग का नहीं पार्ट लिखना है, ठीक है। आप एक जगह स्टाइल में लिख देंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ यू फॉर एग्जांपल यू सी हियर this is what you write here, style type equal to text CSS, okay। ये पहले लिख देंगे, फिर हमने हमारे जो भी इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वही किया हमने, H3 इसके लिए ये सब, और ये स्टाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये आपने सारी स्टाइल एक साथ हेडिंग में फर्स्ट एट द टॉप ऑफ योर HTML कोडिंग आपने दे दिया, एंड आफ्टर दैट नाउ you run your website. So when you execute your website, it will display as the styles for as you defined the styles, okay। For example, you see here internal embedded, ये title है, स्टाइल टाइप इक्वल टू, ये हम लिखेंगे स्टार्ट। आपको ये याद रखना है क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्टाइल, ये इंटरनल स्टाइल है, ओके। और इसके बाद में अंदर आपको इस स्टाइल के टैग के अंदर यू विल हैव टू डिफाइन ऑल द टैग्स एंड देयर डिजाइनिंग प्रॉपर्टीज, ओके। सो यू हैव रिटन एज यूजुअल कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से, और फिर ये डिजाइन कर दिया आपने। उसके बाद में नीचे हम गए, और आपको उस दिन भी बताया था दैट along with बॉडी टेबल, कहीं पे किसी के साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया, ओके। टेबल, ये जो टेबल है, इस टेबल के लिए हमने डिफाइन पहले से ही स्टाइल में कर दिया है, टेबल के साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाने की जरूरत है, ओके। बिकॉज in this here we have defined already in the styles that table should be of this design. So this design you have written in this style tag, okay। और ये इस तरह से कर दिया, और टेबल में आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, मींस एट्रीब्यूट्स डिफाइन नहीं किए कि टेबल में यहाँ क्या कलर चाहिए, क्या कुछ। वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टेबल टैग, वी हैव रिटन दैट इन द स्टाइल टैग at the top of the HTML code, okay। Now this we have done. You see here again, please note that internal style sheet contains CSS rules as we learnt in section A, and it is enclosed in style element, ठीक है। स्टाइल एलिमेंट के साथ हम देंगे इस तरह से। तो ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, अभी मैं आपको फिर से उस पर रिव्यू करके बताता हूँ दैट वी यूज्ड इट टेस्टिंग, ओके। ये हमने ओपन विद नोटपैड हमने देखा, ये आपका था। ये कल मैंने समझाया था आपको कि ये है HTML टेस्टिंग। हमने एक वेब पेज बनाने की कोशिश की थी, HTML कोडिंग किया, ये HTML हेड के अंदर टाइटल है, ये हमारा वेबसाइट करके माय वेबसाइट हमने टाइटल दिया। नाउ आफ्टर दैट एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू इन द बिगनिंग, वी राइट हियर स्टाइल टैग, ओके। और इसमें हमने, ये कौन सा स्टाइल है, ये हमारा कौन सा वे है टू राइट, which type of way we are using here, it is called internal method to include CSS rules in HTML code, okay। So it is internal method means आपने अलग से फाइल नहीं बनाई सेपरेट, आपने HTML के अंदर ही इसको एम्बेडेड कर दिया, ओके। यू हैव इंक्लूडेड
this HTML, style inside the HTML, but separately. आपने separate किया है. Now this we have done. Now wait, just a minute. Okay. Yes. Now you watch. Here you see, ये आपने दिया. अब हमने इसमें क्या डिफाइन किया हुआ है? इसमें आपने डिफाइन किया हुआ है कि H1 ये होगा, ठीक है. ये पहला आपने डिफाइन कर दिया that H1 object should be of this style. Font family Arial black, color blue. Body should be of having background hyphen color colon green. ये हमने दे दिया. और पैराग्राफ में P कलर व्हाइट होना चाहिए टेक्स्ट का. फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए. फॉन्ट साइज हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया ऐसे ही समझने के लिए 72. और इसकी स्टाइल जो है मींस फॉन्ट की स्टाइल वो इटैलिक होना चाहिए. ये हमने तीन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज वी हैव डिफाइंड इन पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट we have closed this slash style. So in this manner, whatever you are using in your HTML code, like table, like body, like paragraph or headings, whatever the object you are using in your HTML code, all such headings, all such elements or all such objects which you are using in your HTML code, all elements designing part is to be defined under this style tag. ओके तो ये डिजाइनिंग पार्ट हमने यहाँ डिफाइन कर दिया. अब हमने इसको ये H1 जैसे ये था एक हेडिंग, दूसरा हेडिंग ये था, ठीक है. ये पैराग्राफ हमने दो लिए थे, ठीक है. आपको अगर एक और हेडिंग है सपोज कॉमा H2 तो दोनों को आप कॉमा लगा के H2 दे सकते हैं, ठीक है. पैराग्राफ तो एक ही टैग होता है तो इसलिए जरूरत नहीं है, तो दोनों के लिए हमने ये कर दिया. अब आपने सपोज यहाँ पर दूसरी हेडिंग, ओके आई हैव रिटन हियर, वैसे इसमें कुछ फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि हमने फॉन्ट साइज 72 दोनों में लिया है इसलिए. ओके सो इफ सपोज आई राइट हियर H2 एंड समथिंग वी हैव रिटन हियर, आई पुट हियर /H2. सो ये दूसरी हेडिंग के लिए हो गया. सो इसके लिए भी यही चलेगा. नाउ आफ्टर दिस when I save it and after saving now we run it, means execute this testing. Now you see, watch, ये आपका इस तरह से हो रहा है. Okay, now you have seen one thing here that H1 heading में ये था, ये H2 heading है, उसका भी यही है. ओके ये डिफाइन हो गया. ये H2 हेडिंग है इसलिए इसका थोड़ा सा साइज स्लो रिड्यूस हुआ है एंड देन इट्स वर्किंग. अब आपको ये समझ में आ गया. तो जो हमने ये आपको कोडिंग बताई थी ये टेस्टिंग का कोड था, ठीक है. ये सॉरी okay now here you see this one here, all these styles are here and we have made it here. Now immediately quickly I am just making some small change in it to just make you understand. In place of background color I want here image. Okay, I want here image. So in place of color I can put here IMAGE, image. But for image in the background I need what? The path name, means location of that image file. So you put here URL in parenthesis. URL आप लिखेंगे इसमें. मेरे को उसमें इमेज सर्च करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर उस इमेज की लोकेशन दे दूंगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है. सो यू सी इफ आई मेक चेंज इन द बॉडी, ये किसमें? स्टाइल के अंदर. वी पुट हियर बैकग्राउंड हाइफन इमेज एंड आई पुट हियर URL. ओके URL का लोकेशन हम देंगे फाइल का और ये हम इमेज में दे रहे हैं. ओके सो जस्ट अ मिनट, आई क्लोज इट और मिनिमाइज इट. Okay, now I find a particular image file. So I'm just going to open over here. It's something here. Yes. So in this here I find one file GANESH. Okay. So suppose here I am taking properties. Okay. Over here from I am finding it is Ganesh1. Okay, so the file name is Ganesh1. I am just
copying it from here, but remember it's a GIF file and location is F colon. So this thing I am using in this HTML page. Now here it's here I am writing here file name, and the location was F colon / and Ganesh1, and the extension was .gif. आपका ये फाइल नेम था और ये मैंने URL इसमें दे दिया, ठीक है। ये URL मैंने दे दिया, ये आपको समझाने के लिए। सपोज आई मेक चेंज इन दिस ओनली टैग, इसमें इस जगह दिया जो स्टाइल में था, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आई सेव द फाइल, and I just come back here and refresh it to check what will happen. So when I do, you see that image started working. Okay, so in this here you find this by making change over here, the body background changed. But पहले हम क्या करते थे, body tag में यहाँ पर लिखते थे, हम यहाँ पर लिखते थे background BACKGROUND is equal to और फिर उसका पाथ नेम दे देते हैं। अब ये हर टैग के साथ नहीं देना है, आपने वो चीज इस स्टाइल के अंदर दे दिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। में कलर है। अब देखिए ये पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ किधर है, ये है। अब मुझे पहले अगर होता हमारा HTML कोडिंग पहले होता तो हमको यहाँ पर अलग से लिखना पड़ता मीन्स इसका टेक्स्ट कलर। सो टेक्स्ट इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर लिखते सपोज इसका जो भी कलर आपको देना है BLACK ब्लैक, ओके। और फिर हमको यहाँ पर भी कुछ और देना है तो टेक्स्ट इक्वल टू इसका कलर हम देते कुछ और, ठीक है, ग्रीन या पिंक या वॉट एवर इट इज। सो इन दिस मैनर इन बोथ द टेक्स्ट वी वेयर राइटिंग। अब मुझे यूनिफॉर्म चाहिए कि दोनों पैराग्राफ में मुझे कौन सा कलर चाहिए। इन प्लेस ऑफ व्हाइट आई नीड ओवर देयर सपोज रेड कलर, ओके। सो इन प्लेस ऑफ व्हाइट आई पुट हियर RED रेड। एक जगह करना है, दोनों पैराग्राफ्स में अलग अलग रेड नहीं लिखना, मींस इधर टेक्स्ट इक्वल टू रेड, इधर भी टेक्स्ट इक्वल टू रेड, ये नहीं लिखना। we will write only at one place that in all the paragraphs whichever is available in this particular HTML code, all paragraphs will be of red color, okay। This you have defined in the beginning, you have declared it, and the same way आपने ये भी डिक्लेयर कर दिया, okay। font size आपका 72 था, यहाँ पर मैंने suppose 24 कर दिया, अब छोटा कर दिया, ठीक है। font style italic था, ये मैंने इसको bold कर दिया, ठीक है, bold comma italic। let's see what will happen now। this one we have done। इतना करने के बाद में मैंने सेव किया, मैं इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश किया, यू सी ओवर हियर ये दोनों जो पैराग्राफ थे वो आपके कैसे हो गए, रेड कलर में आ गए, ठीक है। ये रेड कलर में आ गया और ये भी रेड कलर। एंड वी इफ सपोज वी सेव इट एंड इफ वी रिफ्रेश इट, ये इटैलिक्स में आ गया। नाउ यू हैव सीन। सो हियर दिस वाज द एग्जीक्यूशन of this one, and H1 H2 here it is Arial black। in place of both the headings I want in place of blue color की जगह मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया। अब rather than writing everywhere H1 में भी ग्रीन, जहां इधर भी ग्रीन इधर भी ग्रीन लिखना पड़ेगा, ऐसे H2 में भी। so 3 times I need to type green 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 everywhere wherever headings are there। in place of that I can write over here simply that all the headings which are H1 H2 wo color green। so only one change I need to do and it is more proper way। so designing part idhar, बाकी सारा content इधर, ओके। ये हमारा इंटरनल स्टाइल है, अभी समझ में आ गया, ये इंटरनल स्टाइल है। इसको मैंने सेव किया, जस्ट आई रिफ्रेश इट एंड यू सी ये आपका जो हेडिंग्स थे वो ग्रीन कलर में हो गए इन प्लेस ऑफ जो पहले भी ब्लू लिखा। अगर आपको अपने स्कूल में 9th A में ब्लू डिस्टेम्पर चाहिए और 10th A में ग्रीन डिस्टेम्पर चाहिए तो फिर आपको CSS नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। आपको सारे क्लासरूम में एक ही रंग का डिस्टेम्पर चाहिए, देन ओनली CSS विल वर्क। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? अदरवाइज वही है that you have to go to each and every classroom separately and mention the color what you want।
So this was I was explaining. Variation of font is not possible. Okay. Here, if I take here Arial Black, then if I save it and if I refresh it, so we made changes. Yes. ये था आपका पैराग्राफ, पहले टाइम्स न्यू रोमन में था, अभी एरियल ब्लैक में हो गया है. ठीक है. इंटरनल मेथड. ओके, वी हैव डन इंटरनल मेथड. ये आपका हो गया. नाउ कम टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट. ये हम अभी करेंगे नेक्स्ट टाइम.